उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 5वें बैच के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया। युवाओं को लोकतंत्र में अहम भागीदार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी संस्कृति कहती है बिना वाद विवाद के समस्या का हल नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कितने डिविजिव इश्यूज थे, कंटेंशियस इश्यूज थे, भारी मतभेद थे। मनभेद कभी नहीं हुआ। The tough terrain was negotiated. The headwind was faced. Air pockets were overcome by dialogue, debate, discussion, and deliberation. Idea was not to score a point. Idea was to arrive at a consensus, a consensual approach. Because India is a country that is a role model of inclusivity, tolerance, adaptability. ये सब आपको देखना पड़ेगा. You may have to invite attention if you get an opportunity to help a member कि वाद विवाद कैसा होना चाहिए. हमारी संस्कृति कहती है बिना वाद विवाद के समस्या का हल नहीं हो सकता. I firmly believe the world faces problems that are existential in nature, also climate change or conflagrations. We have one in Russia, Ukraine, another Israel, Hamas. But at the end of the day, as Prime Minister indicated, resolution takes place only through dialogue and diplomacy. Therefore, are we performing at the moment like this? Have we not yielded space of debate, dialogue to disruption and disturbance? Have we not yielded space of consensus building to irretrievable, confrontational stance? उपराष्ट्रपति ने कहा बीते 10 वर्षों में देश ने अर्थव्यवस्था में, संस्थागत ढांचे में, तकनीकी विकास में लंबी छलांग लगाई है. अब लोगों की आकांक्षा आसमान छू रही है. गत 10 वर्ष में यदि आप देखेंगे तो किसी भी देश ने इतनी बड़ी उछाल नहीं लगाई है अर्थव्यवस्था में, संस्थागत ढांचे में, तकनीकी विकास में, जितनी भारत ने लगाई है. India is singled out as the only nation that has registered in last decade huge economic upsurge, exponential infrastructural growth, deep technological penetration, hand-holding policies that are affirmative for youth. And what has been the outcome? An atmosphere of hope and possibility. People of this country have tasted development for the first time because they have a toilet in the house, gas connection in the kitchen, internet available to them, road connectivity, air connectivity. They are about to have piped water, potable water. 40 million have already had affordable housing. When you taste such a situation, you become aspirational nation. And this was done by a great planning. लोग appreciate नहीं करते हैं. जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, उनकी संख्या कम होती जा रही है. वो जिले थे जहां कोई अधिकारी जिलाधीश नहीं बनना चाहता था, एसपी जाना नहीं चाहता था, डेवलपमेंट वहां नहीं था.
He took it upon himself. The entire nation has to be like a plateau, not like a pyramid. नतीजा क्या हुआ? Identified aspirational districts. आज के दिन बदलाव 180 डिग्री आ गया है. अब लोगों की आकांक्षा आसमान छू रही है. अब हर कोई सब कुछ चाहता है. लोगों के मन में आ गया है कि प्रगति की गंगा जब इतनी ज्यादा बह गई है तो हम दुनिया में नंबर 1 बनकर रहेंगे. और सबसे पहले वो खुद को देखता है. आपका दायित्व है. As brilliant young people, you will have to find out what are the opportunities for youth. I am somewhat concerned that our youth is still thinking in terms of coaching classes for government jobs. He is in a silo. He is in a groove. सरकारी नौकरी से आगे नहीं सोच पा रहा है. उसको ध्यान देना चाहिए कि आज के दिन द बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ता जा रहा है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत अब ड्रीम नहीं रहा, विकसित भारत हमारा डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट है, डेस्टिनेशन है. आपका एक एक पल यहां भारत के ड्रीम को रियलाइज करने का है. विकसित भारत अब ड्रीम नहीं रहा. विकसित भारत हमारा डेफिनेटिव ऑब्जेक्ट है, डेस्टिनेशन है. वी विल अचीव इट फॉर श्योर at 2047 when we celebrate centenary of our independence. आज के दिन भारत के पास सबसे बड़ी चीज है तो वो ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द यूथ. दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं. वी आर एनवी ऑफ द वर्ल्ड. ये चैलेंज भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है. आज के दिन एक बहुत शुभ संकेत हुआ है और वो शुभ संकेत है कि संविधान निर्माताओं ने जिसकी कल्पना की थी और निर्देश दिया था संविधान में, एंड दैट इज इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Our framers of the Constitution directed state to work hard to realize directive principles. कुछ का रियलाइजेशन हो गया है, like right to education. पर एक जो रियलाइजेशन है वो आर्टिकल 44 है. आर्टिकल 44 of the Indian Constitution mandates, orders, the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. We all are in joyous mood today. The beginning of the last quarter of the century of adoption of Indian Constitution has taken place with Devbhoomi, Uttarakhand, making UCC a reality. One state has done it. I congratulate the farsightedness of the government of Uttar Pradesh for realizing a vision of founding fathers of the Constitution in having uniform civil code in their state. And I'm sure it will be a matter of time when the entire country will have similar legislation. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर चिंताओं को भी साझा किया. We have to see the challenges. And challenge to the nation is millions of illegal migrants are living in our land.
millions. Is it not a challenge to our sovereignty? Such kind of people will never be wedded to our nationalism. They use our resources of health, education, and other facilities. They engage in jobs meant for our people. I expect everyone in the government to take a severe look at this. This problem and resolution of it cannot be delayed even by a day. How can a nation suffer illegal migrants in millions? They are a threat to our democracy because they are trying to influence our electoral system. They are also a threat to our societal harmony, to our national security. आप सब जो यहाँ पर हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है आज. Power of social media. When you are seeing institutions being run down in this country, why? Because a small number has fragile connect with our nationalism. You have to expose them. Anti-national narratives of a nation that is on the rise as never before. And the rise is unstoppable. The destination is well set. ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसे विचारों को कुचलना पड़ता है, उन पर प्रतिघात करना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है. और ये सबसे बड़ा दायित्व आज के नवयुवक और नवयुवती के ऊपर है. एनसीसी कैडेट्स ने करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में प्रदर्शन किया. वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार की परेड इसलिए भी खास थी क्योंकि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे किए हैं. प्रधानमंत्री ने युवाओं से विकसित भारत बनाने का आह्वान किया. इस अमृत काल में हमें अपना एक ही लक्ष्य रखना है, विकसित भारत. हमारे हर निर्णय की कसौटी, हर कार्य की कसौटी विकसित भारत ही होनी चाहिए. और इसके लिए हमें अपने पंच प्राणों को हमेशा याद रखना है. पंच प्राण यानी हमें विकसित भारत बनाना है. हमें गुलामी की हर सोच से मुक्ति पानी है. हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है. हमें भारत की एकता के लिए काम करना है और हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है. ये पंच प्राण हर भारतीय को दिशा देने वाले हैं, हर भारतीय की प्रेरणा है. एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नागरिक कर्तव्यों का भी महत्व समझाया. आपको अपने कर्तव्यों का भी हमेशा ध्यान रखना है. कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा. साथियों, आज जब आपके बीच आया हूं, आपका ये जोश और जज्बा देख रहा हूं, तो किसी समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं. वो पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है.
किसी समय मैंने लिखा था, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद काफी समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते, और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती है। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। इसलिए आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। सब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं, और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली में आयोजित व्यापारी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी वर्ग हमेशा से देश के विकास में अहम योगदान दिया है और वो देश के विकास की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग दुनिया भर में भारत की संस्कृति के अग्रदूत और शांति दूत हैं। किसी देश की आर्थिक मजबूती के रीढ़ के सबसे मजबूत अंग होते हैं, और मेरा मानना है कि देश के अंदर व्यापार इंडस्ट्रीज फलती फूलती है, वो देश आगे बढ़ता है। और आज हमें खुशी है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे भी बढ़ रहा है, और दुनिया में भारत की ख्याति, भारत की प्रसिद्धि, भारत के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा भी बढ़ रहा है। और इसीलिए आज दुनिया के लोग भी भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के लोग जो देश के अंदर है, उस देश के अंदर व्यापारी उद्योगपति हमारे अग्रदूत हैं, हमारे सांस्कृतिक दूत हैं। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर
जो व्यवस्थाएं कायम हुई, चाहे भारत की संस्कृति हो, दुनिया की संस्कृति हो, दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान हो, दुनिया का संदेश हो, उन सब में व्यापारियों का योगदान बरसों पुराना, हजारों वर्षों का है। हजारों वर्षों का आप इतिहास देखोगे, किसी देश की सभ्यता संस्कृति देखोगे, विचार संस्कार देखोगे, तो उन सबको पहुंचाने का काम किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार ने व्यापारियों के हितों को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। भारत सरकार ने भी व्यापारियों के कल्याण के लिए, व्यापारियों की समृद्धि के लिए, व्यापारियों के खुशहाली के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड बनाया है, जिसके अध्यक्ष सुनील सिंघवी जी हैं। मैं उनको जानता हूं, उनका सारा जीवन समर्पित है व्यापारियों के लिए। और आज भी देश में घूम घूम कर किस तरीके से व्यापारियों की कठिनाइयां, चुनौतियों का समाधान हो, हर ट्रेड के अंदर बैठकर उनकी चर्चा की जाए। आने वाले समय के अंदर कोई भी व्यापारी की कोई भी कठिनाई, चुनौती हो, ये कल्याण बोर्ड आपके साथ खड़ा है, भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, व्यापारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस व्यापारियों की समृद्धि, खुशहाली केवल खुद की समृद्धि, खुशहाली नहीं होती।